Okay, so today our topic is basics of clinical research. Okay, why? Because it is very important in CETIS standard. Because in CETIS, there is some clinical world. Okay, so CITES full form is Clinical Data Interchange Consortium. Okay, so clinical data we must know. We must familiar with clinical data, clinical term. Okay, so that's why we will learn first clinical terms. Why? Because it is a part of clinical research. So let's start with basic terms, basics of clinical research. Okay. So, warm welcome to all, and let's start first topic. So, I want to give some basic information how the drug history, okay, what is the drug, okay, because we need some basic domain knowledge, basic process of the drug, because we will deal the clinical trial data. That's why we need some clinical process. We need to understand what is the basic clinical process, okay. So what we will learn, like what is drug, types of drug, okay, routes of drug, drug approval history, drug regulatory, why regulatory is required, when it is started, drug application, which type of application we should do to market our drugs like IND, NDA, ANDA, it's a application, drug development history, then drug discovery in lab testing, then preclinical in animal testing, then clinical trial, phase 1 to 3, find safety and efficacy, and then phase 4, post-market surveillance. So this is the basic flow, what is drug to phase 4, like post-market surveillance, okay? So let's start with the first thing, the what is drug, okay? So like we will make this session very interactively. You can ask the question even I'm expecting from your side. If you don't understand anything, let me know. You can disturb anytime. Okay. So a drug, broadly speaking, is any substance that, when absorbed into the body of a living organism, alters normal bodily function. Okay. So substance means like some things that which is we can use any specific things. Okay. Any material that we can say, सो विच एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, ओके, जो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ओके, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी है, मतलब इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस, इट मस्ट बी लिविंग, ओके, ऑल्टर्स नॉर्मल बॉडीली फंक्शन, ओके, सो दिस इज अ ड्रग. व्हाट इज ड्रग? सो ऐसी कुछ चीज जो हम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, so we will say that is a drug. So we know that as per this picture, injections है यहाँ पे, like drug it's like capsules, यहाँ पे कुछ medication like दिया हुआ है, कुछ drink है, okay. So type of drugs, so which type of drugs, like tablets, okay, tablet form में भी आता है, capsules, liquid, injection, then drops, like eyes में हम drops डालते हैं, right, ईयर्स में, देन ऑइंटमेंट, जैसे कि विको है या कुछ भी सोफ्रामाइसिन है ना, काइंड ऑफ, अगर कुछ भी लाइक फ्रेमसेटिन स्किन क्रीम है, ठीक है. देन लेज़र है फॉर आईज के लिए, और लेज़र ऑपरेशन भी होता है कुछ कुछ सर्जरी के लिए. इनहेलर है, लाइक अस्थमा पीपल दे आर यूजिंग दिस, राइट, लिक्विड मोस्टली, the like childs they are using liquids. Injections for direct relief, right, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए हम इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन लेते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई दवाई की जगह पे इंजेक्शन ले लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है. कैसे? क्योंकि डायरेक्ट बॉडी में जाता है ना, इसलिए. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रग्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड, इंजेक्शन, ड्रॉप्स. ये ड्रॉप्स जैसे कि ओट्रिविन ड्रॉप्स है, ठीक है, नसल ड्रॉप्स होता है जो नोज में डालते हैं, कान में डालते हैं, वैसे ऑइंटमेंट, लेज़र, इनहेलर. लेज़र से हम, है ना, आइस का ऑपरेशन भी करते हैं ना, लेज़र ट्रीटमेंट.
चश्मे का नंबर निकालने के लिए या चश्मा निकालने के लिए. So this all type of drugs, right? Now routes of drug administration. So रूट्स कहाँ है, मतलब रूट्स कौन से है जो ड्रग हम दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो इट्स डिटरमाइन primarily by the properties of the drug. Okay, so major routes of the drug, there are two. So एक है internal. Okay, so inner part of the body, जैसे कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स है, इसोफेगस है, लाइक अब हमारा जो गैस्ट्रो ट्रैक है उसमें, स्टमक में, एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो एक ये हो गया. एक है पेरेंटल. द पेरेंटल रूट इज द रूट दैट इज नॉट एंट्रल, लाइक दिस वन. ओके, आई थिंक दिस इज द, हाँ ये यहाँ का है. एंड दिस इज पेरेंट्रल, मतलब जो बॉडी में नहीं है, जो हम उसको देते हैं स्किन में या मसल्स में, इंट्रामस्कुलर है, फिर सबक्यूटेनियस लाइक स्किन के नहीं, मतलब स्किन में देते हैं. तो दैट इज अ पेरेंट्रल. सो देर आर टू टाइप. जो एक है इनर, जैसे कि हम दवाई लेते हैं तो लाइक ओरली लेते हैं. टाइप ऑफ एंट्रल रूट कौन सा है, ओरली. जैसे ओरल है, सबलिंगुअल है ना. हम टंग के नीचे भी रखते हैं कुछ, फिर रेक्टल भी है ना. सो दिस इज एंटरनल रूट जो हम हमारी बॉडी में अंदर डालते हैं. और जो पेरेंट्रल रूट्स है तो उसमें इंट्रावास्कुलर, ओके, हमारी वीनस में, मतलब हमारी जो नस होते हैं ना उसमें देते हैं, वेन में. देन इंट्रामस्कुलर स्किन में, फिर सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे. ओके, सो these आर द पेरेंट्रल रूट्स. ओके, एक और लाइक ओके रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अदर्स. तो देर आर मोर टाइप्स, लाइक इनहेलेशन भी है, जो एक नया लाइक लाइक लास्ट 20 years में ये हम यूज करते हुए, लाइक अस्थमा पेशेंट्स, दे आर यूजिंग दिस, राइट, इनहेलेशन. इंट्रानसल, फास्ट रिलीफ के लिए, अगर आपकी नाक बहती है तो या कुछ ऑब्स्टिकल्स है तो आपको तुरंत रिलीफ देता है इंट्रानसल्स में. देन इंट्राथेकल एंड इंट्रा वेंट्रिकुलर है, जो हमारी जितने भी बोन्स होते हैं या स्पाइनल कोड है ना हमारे पीछे, जो उसमें देते हैं. फिर ये जैसे कि माइंड में है तो वहाँ पे भी बोन्स होते हैं, तो उसमें भी डायरेक्ट इंजेक्शन दे के उसमें कर सकते हैं. तो दिस आर द रूट्स. ओके, इंजेक्शन भी है, इनहेलर भी है, ड्रॉप्स भी है. ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन है मोस्टली, जो जो बॉडी के बाहर होता है, जो स्किन और इंट्राविनस में ही होता है. डायरेक्ट मसल्स में जैसे कि वैक्सीन देते तो इंजेक्शन थ्रू मसल्स में देते हैं या वीनस में देते हैं. तो दिस इज अ बेसिक रूट्स. ओके, तो हमें पता होना चाहिए. ओके, अदर्स, और एक अदर्स लाइक टॉपिकल इज यूज व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, जैसे कि मोस्टली प्रीक्लिनिकल स्टडी होती है तो उसमें एनिमल्स को देते हैं आइज में टॉपिकल. ओके, कुछ ड्रॉप्स भी हम आइज में डालते हैं. तो दीज आर द टॉपिकल यूज व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड. जैसे कि आइज में इश्यू है तो वहाँ पे डालो, ईयर में है तो ईयर में डालो, लाइक दैट. ओके, लोकल इफेक्ट के लिए. सो दीज आर द रूट्स ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ ड्रग रूल्स एंड अप्रूवल इज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, पहले तो ऐसा था नहीं, ग्रेजुअली रिसर्च होता रहा. ठीक है, धीरे धीरे कंपनियां आती रही, उन्होंने उनका रिसर्च किया. बट व्हाट हैपन दैट हाउ दिस रेगुलेटरी बॉडी दे आर इंट्रोड्यूस, राइट, व्हाई ड्रग अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि आप कोई ड्रग बनाते हो और यू कैन सेल द इन मार्केट. ओके, because it is not like materials like plastic or it's and any toys that you can simply sell, because it's direct related to human health. That's why it's very serious things. Okay,
and how drug rules and approval is introduced. So there are three events, like three bad events we can say, not it's a events, but there is a bad events happen in the history, like in 1930, Jack leg paralysis, okay. In 1937, after 7 years, elixir sulfonamide, like taste of death, and 1962 में thalidomide tragedy, like 50% death from total case. So these three events what happened. So basically, Jack leg paralysis, the ginger jack poisonings. Okay, so like someone company that they made this ginger jack poisonings. Okay, if we read that is mysterious epidemic of paralysis was sweeping through 1920s America that had the medical community baffled. Okay, and somehow one way through a highly alcoholic liquid called Jamaica ginger or okay. So basically what happened, like this ginger jack poisonings, after taking this drug in 1930, maximum like some peoples they have these issues like the toxin starts. उस टाइम पे ऐसा कोई था नहीं ना कि भी अच्छा ये ड्रग ओके है नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कंपनी ने बनाई और बेचना स्टार्ट कर दिया. So the toxin starts by causing lower leg muscular pain and tingling, okay, and followed by muscle weakness in the arms and legs. The effect on the legs cause a distinctive form of the muscle paralysis. एक kind of वो पैरालिसिस करती थी ये ड्रग, लेकिन किसी को मालूम नहीं था. तो जितने लोगों ने ली उनको पैरालिसिस हो गया इन 1930. देन एलेक्सिर, एलेक्सिर की भी ऐसी एक हिस्ट्री है, ठीक है. उसका फ्लेवर एक कंपनी ने ये बनाई जो 1937 में मोर देन 100 यूएस सिटीजन्स. तो टेस्ट ऑफ रास्पबेरीज फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ डेट, रास्पबेरी फ्लेवर की ये सल्फोनेमाइड ड्रग बनाई जो मैन्युफैक्चरिंग किए थी एस ई मैसेंगिल कंपनी ने ब्रिस्टॉल में. तो देन दे नो दे फाउंड दैट दिस इज अ टेस्ट ऑफ डेथ. ओके, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई एंड ऑलमोस्ट 100 सिटीजन उसमें डाइड हो गए विद इन अ शॉर्ट टाइम. So now who can control this? Okay, so so because of this continuous this type of events or incidents happen, so people were thinking on that. Then another one is thalidomide tragedy in 1962. Okay, so basically German drug company developed and sold the drug this. Okay, so basically that drug was for anxiety and gastric and tensions के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई थी, लेकिन उसकी वजह से शॉर्ट टाइम में 5,000 इन्फेंट्स बोले तो वेरी स्मॉल चाइल्ड they have this phocomelia disease, and only 40% of these children survived. 10,000 cases were reported and only 50% of the 10,000 survived. 5,000 लोगों की मौत हो गई, मतलब जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उनकी. सो नाउ वर्ल्ड दे आर थिंकिंग ऑन दैट कि यार ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कंपनी दवाई बनाएगी और मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देगी. देन पीपल वेर started to thinking that such incidents and tragedies, okay, because it's a tragedies and this is bad incidents, led to introduction of rules for the approval of new drug. फिर लोगों ने सोचा कि नहीं यार, कोई हर एक कंट्री में एक बॉडी होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो ये ड्रग अच्छी है बुरी है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये चीज़ें बताएगा. देन ओनली दे कैन मार्केट. सो यहीं से स्टार्ट हुई दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ड्रग. सो कैसे स्टार्ट हुई कि फिर चलो बायो फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट का पूरा एट्रीशन यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये ड्रग डिस्कवरी होती है सबसे पहले, चलो किसी ने ड्रग फाइंड की तो 10,000 कंपाउंड में से फिर 250 कंपाउंड्स उसमें से सिलेक्ट होते हैं कि जो एलिजिबल है.
पहले तो ड्रग डिस्कवरी में ही 5 साल लग जाते हैं, ड्रग ढूंढने में ही। ओके, जैसे कि बैसिल है, तो वी नो दैट कि बैसिल्स मतलब तुलसी खाने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है, राइट। इवन फीवर भी टेक केयर होता है उससे, लेकिन वो हमें प्रूव करना होता है। तो कंपाउंड्स तो मिल गया, लेकिन उसमें से 250 कंपाउंड्स ही आगे जाता है। So you just see the possibility, like probability for success. Like after 10,000, only 250 compounds will go in preclinical. Preclinical means animals में जो टेस्टिंग होता है, that is called preclinical. उसके लिए 1.5 years लगता है। Then एक बार preclinical हो गया, okay, 250 compound में से, then we need to take uh, investigational new drug application, कि भाई हमें अभी परमिशन चाहिए ह्यूमन में ये करना है टेस्ट। फिर हो जाती है फेज 1 में। यस, कंपाउंड में क्या? कंपाउंड मीन्स ड्रग। जैसे कि 10,000 ड्रग इन्वेंट हुई, ठीक है, 10,000, तो उसमें से हर एक ड्रग अच्छी नहीं होती। तो रेगुलेटरी बॉडी देखती है कि भाई 10,000 एप्लीकेशन आई है, तो उसमें से 250 ही सिलेक्ट होती है। तो दिस इज द रेशियो। ओके, सो 250 में से फिर क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1 फेज 2 तक तो पांच पांच ड्रग ही पहुंचती है। जैसे मान लो कि 10,000 कंपनी है, उन्होंने एप्लीकेशन की है, लेकिन उसमें से 250 कंपनी की ड्रग ही, मतलब कंपाउंड्स बोले तो ड्रग, वो ही आगे जाती है जो इसमें से पास होती है। फिर यहाँ तक आने में तो 250 में से 5 कंपाउंड्स ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। फिर फेज 1 फेज 2 फेज 3 में 6 साल, 5 से 6 साल लग जाता है। देन फेज 3 के बाद अगर आपको ड्रग रिलीज करनी है तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, एंड देन दे विल रिव्यू फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन, देन ओनली वन एफडीए अप्रूवल ड्रग। उसके लिए भी रिव्यू के लिए 2 साल लगता है, एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी 2 साल लगता है। नाउ यू अंडरस्टैंड कोरोना वैक्सीन में इतना टाइम क्यों हुआ। नॉर्मली पीपल आर सेइंग ऑलमोस्ट 10 to 15 years लग जाते हैं। कोरोना वैक्सीन, हाउ वाई दे लाइक इट्स मेड इन विद इन 1 year, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, ये सारी ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारी चीज़ें मतलब रेगुलेटरी सामने से आती है कि भाई फटाफट लाओ, हम वी आर रेडी। बिकॉज बहुत बहुत सारी कंपनी उनकी ड्रग रिव्यू के लिए भेजती है, लेकिन जब ऐसी कोई इंसिडेंस होती है, लाइक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन होती है, तो देन रेगुलेटरी बॉडी दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस फर्स्ट टू दिस टाइप ऑफ डिसीज लाइक कोरोना और रेयर डिसीज। तो सामने से बोलते हैं कि वी आर रेडी, आप सबसे पहले हमें दो, हम रिव्यू करके फटाफट आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट्स भी ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे 6 साल लगाए तो वही काम लोग 6 महीने में भी कर लेते हैं। हाउ, तो टाइम, एफर्ट्स, स्टाफ, दे कैन इंक्रीज, राइट। सो 10 साल का काम 1 साल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्टाफ भी बढ़ाना पड़ता है। टाइम 24 आवर्स काम करते हैं उस पर, रेगुलेटरी बॉडी भी सपोर्ट करती है। सो यू जस्ट सी द नंबर्स, 10,000 कंपाउंड में से एक ही ड्रग आपको अप्रूवल मिलता है। आप सोचो, एक एक ड्रग जब आती है यहाँ से यहाँ तक, तब तक 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। 10,000 ड्रग आती है इंटू 1,000 करोड़, आप करो उस कितने पैसे खर्च होके, फिर उसमें से निकल के फिल्टर होके होके आफ्टर 10 years ओनली वन ड्रग को ही अप्रूवल मिलता है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन बहुत सारे लोगों ने बनाई, more than 80 to 90 companies were there, okay, and still lots of company are in the pipeline. But yes, there are only 2 or 3 company who made effective vaccines of corona, right? So similar things here. सो व्हाट इज द बेसिकली, अभी बात निकली यहाँ पे फेज 1 फेज 3, ये प्रीक्लिनिकल क्या है, ये सब क्या है, ओके, फिर ये आईएनडी क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स के बेसिकली ये क्या है। सी व्हाई वी आर लर्निंग दिस फॉर सिडिस्क, बिकॉज ये एफडीए रिव्यू है, ठीक है। तो बेसिकली एफडीए इज नथिंग बट फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जो रिव्यू करता है डेटा, तो
उसको डेटा यूनिफॉर्म फॉर्म में चाहिए, ओके। तो उसके लिए उसका काम इजी रहता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस क्या है, बेसिक डिटेल्स क्या है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले अभी अभी देखो ये डिस्कवरी हो गई यहाँ पे। एक बार हमें पता चल गया कि भाई तुलसी है तो वो खाने से फीवर अच्छा हो सकता है या उससे जुकाम नहीं होता, तो वो हमें पता है, लेकिन वी नीड टू प्रूव। ओके, तो ड्रग डिस्कवरी तो हो गई, उसके लिए बेसिक जो प्रिपरेशन करना था वो हो गया। देन इट विल गो इन प्री क्लिनिकल। सो तो बेसिकली वो स्टार्ट होता है प्री क्लिनिकल से। प्री क्लिनिकल बोले तो बिफोर क्लिनिकल। तो प्री क्लिनिकल में आता है एनिमल मॉडलिंग, ओके। जो एनिमल पे रिसर्च होता है उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल। तो एक बार प्री क्लिनिकल हो गया, उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि ड्रग अच्छी है, ठीक है, उसका फार्माकोकाइनेटिक कैसा है, मतलब अच्छे से काम करती है, ठीक है, उसका डोज कितना देना है, ये सारी चीज़ें प्रीक्लिनिकल में कंफर्म हो जाती है। ओके, हम डिटेल्स में समझेंगे प्रीक्लिनिकल क्या है। अभी एक जस्ट आई वांट टू गिव ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस फ्लो। ओके, सो एक बार प्रीक्लिनिकल हो गया तो जैसे कि हमारी जो लाइक हमारी बॉडी है ऑलमोस्ट फ्रॉग से या मंकी से मैच करती है, हमारा जो मैकेनिज्म है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनिमल्स। ओके, तो एक बार प्रीक्लिनिकल हो गया, जैसे कि प्रीक्लिनिकल में कौन से एनिमल्स में होता है, जैसे डॉग है, मंकी है, ठीक है, फिर रैबिट है, माउस है। तो ये सारों में एक बार प्रीक्लिनिकल हो गया, देन वी नीड टू टेक परमिशन कि अभी हमें ह्यूमंस में करना है। तो वी नीड टू फाइल आईएनडी। क्या करना है? आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट इन ह्यूमंस। ओके, सो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू जो भी ड्रग हमने ढूंढी है उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि अभी हमें अभी ह्यूमन में जाना है ना। जो क्लिनिकल ट्रायल्स है फेज 1 टू फेज 4। तो फेज 1 द फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स ऐसा बोलते हैं। फेज 1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स। आपको लिखना है तो लिख सकते हो। सो फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स फेज 1, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के बाद ही आप इसमें जा सकते हो आगे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन हमने की वो है आईएनडी एप्लीकेशन। आईएनडी मीन्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। देन फेज 1 हो गया। फेज 1 में थोड़े कम सब्जेक्ट लेके उस पर किया, फिर और कंफर्म किया फेज 2 में, और कंफर्म किया फेज 3 में। फेज 3 एकदम हो गया कि भाई हाँ ड्रग सेफ है, उसकी एफिकेसी अच्छी है, अच्छे से काम करती है। एफिकेसी बोले तो अच्छे से काम करती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे डायबिटीज स्टडी है तो हमारा ग्लूकोज लेवल, HbA1c लेवल डाउन होता है ना, तो अच्छे से काम करती है, उसको बोलते हैं एफिकेसी। और सेफ भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देन वी नीड टू टेक एनडीए एप्लीकेशन। देन वी नीड टू गो फॉर फेज 4। जैसे कि अभी जाइडस की वैक्सीन है, जाइको वैक्सीन अभी फेज 3 में है। देन दे विल टेक एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड फिर बाद में फेज 4 में डालेगी। फेज 4 बोले तो पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। मार्केट में ड्रग जाती है, फिर उन पे रिसर्च होता है कि कितने लोगों को जैसे कि अभी ये वैक्सीन्स है तो अभी फेज 3 में ख़त्म होके पब्लिक में एनडीए अप्लाई करके पब्लिक में डाल दी, मैन्युफैक्चरिंग करके। अभी वो लोग ये भी देखते हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीन ली, उनको साइड इफेक्ट्स हो रही है, कितनी हो रही है, क्या हो रही है। वो सारा काम फेज 4 का होता है। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ like preclinical to phase 4. We will understand in details in next slide. Okay, so this is preclinical. Okay, so different types of drug application that can be submitted to FDA. Okay, so
ये बेसिकली यूएस के लिए है, यूनाइटेड स्टेट्स, ड्रग अप्रूवल इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईएनडी एंड एनडीए। तो आईएनडी प्रीक्लिनिकल के बाद लेनी है और ये एनडीए फेज 3 के बाद लेनी है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आईएनडी कब लेनी है? जब जब हमें फर्स्ट इन ह्यूमंस में जाना है ना, तब प्रीक्लिनिकल के बाद। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फेज 3 के बाद, जब हमें लगे कि ये ड्रग क्लिनिकल स्टडीज कंफर्म दैट अ न्यू ड्रग इज रिलेटिवली सेफ एंड इफेक्टिव और कोई रिस्क नहीं है, देयर विल नॉट एनी पोज अनरीजनेबल रिस्क, तब वो लेनी है ना। देन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो एक बार ड्रग आ गई, ठीक है, मार्केट में, देन आफ्टर 10 years पैटेंट हो गया, फिर उस पर से जेनरिक ड्रग बनानी है, जैसे कि हम बी स्टडी में करते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं? जेनरिक ड्रग। सो इट्स एन एप्लीकेशन मेड फॉर अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग्स। सो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो एक बार यहाँ पे जो, जैसे कि हमारी कोरोना वैक्सीन बन गई ना अभी, तो अभी अभी उसकी प्राइस क्या है? 5000, 4000। तो उसके जैसे ही कोई नई नई वैक्सीन बना दे, जिसमें पूरा रिसर्च नहीं करना है, बस ऐसे एक वैक्सीन बनानी है जिसमें हम प्रूव कर देते रहे कि ये जो हमारी जो वैक्सीन है, ये मार्केट में जो मिलती है वैक्सीन, उसके जैसी ही है एंड सेफ है एंड इफेक्टिव है। तो उसके लिए फिर मुझे ये सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं प्रूव कर देता हूँ कि जो मार्केट में जो मिलती है वैक्सीन, वो और मेरी वैक्सीन जो मैंने बनाई है वो सेम है। दैट इज कॉल्ड बी स्टडी, और उसके लिए ANDA एप्लीकेशन होती है। सो दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमें नहीं करनी होती, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। ओके, व्हेन, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। आपकी डोमेन पे पकड़ जितनी रहेगी, उतना आपका प्रोग्रामिंग भी अच्छा रहेगा, आपका स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा रहेगा। जैसे इंडिया में क्या है, जैसे ये बात हो गई यूएस की, तो इंडिया में कौन है? DCGI है। DCGI बोले तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो ऑफिस इज रन्स अंडर सिडिस्को, उसका नाम है सिडिस्को। इट हैज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसकी सारी परमिशन हमें यहाँ से लेनी है, DCGI से। ये भी आप लिख दो, ठीक है, ये लिख देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल चेक योर डायरी। हाँ, जहाँ पे मैं बोलता हूँ ये लिख दो, तो लिख देने का। इंडिया में कौन है? DCGI। यूएस में कौन है? FDA। IND किसके लिए है? NDA किसके लिए है? ANDA किसके लिए? आई विल आस्क टू एनी वन एनी टाइम एज यूजल। ओके, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है कि जैसे कि नीड फॉर रेगुलेशन। वाई रेगुलेशन की ज़रूरत? जैसे हम समझे कि ऐसे इंसिडेंट होने लगे थे, जो ड्रग सेफ नहीं थी, है ना। तो ड्रग रिव्यूअर्स इन द रेगुलेटरी एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ evaluating whether the research data supports the safety, effectiveness and quality control of new drug products to serve the public health. In short, ये सारी चीज़ हमारे लिए काम की है भी और नहीं भी, जस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेगुलेशन क्यों होता है। तो वो इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ है, इफेक्टिव है और उसकी बहुत साइड इफेक्ट नहीं है ना। तो उनका जो रेगुलेशन का, ड्रग डिस्कवरी करते हैं, देन ड्रग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, देन क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमंस, मार्केटिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ है। अगर ये याद नहीं रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका। तो कौन सी ऐसी रेगुलेटरी और एजेंसीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड? जैसे कि US FDA है USA के लिए, फिर पूरे यूरोप के लिए EMEA, और जापान के लिए MHLW है। इन तीनों की जो बॉडी है, दैट इज अ कॉल ICH। ओके, ये ICH हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि उसकी पूरी गाइडलाइन होती है, और इनिशियली उन्होंने इस पे काम किया। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग द होल वर्ल्ड, दे आर फॉलोइंग दिस ICH E3 गाइडलाइंस। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। ICH का फुल फॉर्म क्या है?
कि किसी भी स्टैटिस्टिशियन या साइंस प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। देखो ये एडिशनल नॉलेज है, ठीक है, ये डोमेन नॉलेज है। आपको जितना पता रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा है, उतना सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी आएगी। सो ICH मीन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इट्स नथिंग बट हार्मोनाइजेशन मीन्स इकट्ठा होके इन तीन लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया है जो परमानेंट मेंबर्स है। हमारे इंडिया में सिडिस्को है, यूके के लिए MHRA है, ऑस्ट्रेलिया के TGA है, कनाडा के लिए हेल्थ कनाडा है। तो वैसे बहुत सारी हर एक कंट्री के लिए, चाइना में SFDA है, कोरिया में, श्रीलंका में MOH है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो दीज आर द रेगुलेटरी एजेंसीज। ओके, तो हर एक कंट्री में उसकी एजेंसी होती है। अगर आप उसकी वेबसाइट भी देखोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे USFDA है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, FDA का फुल फॉर्म है ये। US FDA का फुल फॉर्म क्या है? US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लिख देना आप ये। फिर यूरोपियन यूनियन के लिए भी है ईमा, इसको हम बोलते हैं ईमा, ठीक है, EMEA। सिडिस्को है, देन हेल्थ कनाडा है, जिस ये जो सिंबल है हेल्थ कनाडा के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट रेगुलेटरी विच इज वेरी वेल नोन। ब्राज़ील है, ठीक है, तो उसके लिए एनवीज़ा है, ये भी आप लिख देना, ब्राज़ील की एनवीज़ा है, ठीक है। सो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो उसकी पोस्ट है, कौन सी ड्रग, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ड्रग होती है। जैसे कि किसी बंदे का हाथ टूट गया तो उसमें हम वो स्टील की पाइप भी डालते हैं ना, तो वो भी एक मेडिकल डिवाइस है। अगर किसी का पैर नहीं है तो हम उसमें स्टैंड भी रखवाते हैं, तो वो भी मेडिकल डिवाइस है। तो वो भी ड्रग, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग। न्यू ड्रग ऑफ फार्माकोविजिलेंस, बायोलॉजिक वैक्सीन है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन है। ड्रग्स तो हमें पता है, मेडिकल डिवाइस बोले तो ये सारी चीज़। जैसे अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो हम कान में वो मशीन डालते हैं, ठीक है। स्टमक में भी कुछ ऐसे, अभी अभी तो ये बाईपास सर्जरी करते हैं, स्टैंड डलवाते हैं, है ना। किसी का हाथ पैर टूट गया तो उसमें वो डालते हैं ना, लाइक ऑल द आयरन स्टील मटेरियल्स। सो ये सारी चीज़ों को ऐसे ही नहीं करते, वो इवेलुएट होती है, उसका रेगुलेशंस में से अप्रूवल चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रायल होता है, एंड इफ दैट फाउंड सेफ एंड इफेक्टिव देन ओनली उसकी परमिशन उसको, वो कंपनी को मिलती है, ठीक है। ये सिडिस्को का फंक्शंस है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बेसिकली क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं, ठीक है, देन लाइसेंस देते हैं मेडिकल डिवाइसेस का, ग्रांट पर्सनल लाइसेंस है, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ों का वो अप्रूवल देते हैं कि भाई हाँ ये आपकी ड्रग ओके है, उसका लाइसेंस हम आपको देंगे, है ना। तो कितनी, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी कितनी है, जैसे कि न्यू ड्रग, FDC, बायोलॉजिकल्स, मेडिकल डिवाइस, ओल्ड ड्रग्स, ये सारी की रेगुलेशन होना ज़रूरी है। फिर कुछ रूल्स है जो हमारे काम के नहीं है, लेकिन जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। फॉर स्टैटिस्टिशियंस एज प्रोग्राम इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस है। अगर आपको परमिशन टू इम्पोर्टेंट मार्केट न्यू ड्रग, जैसे कि आपको अमेरिका में आपकी ड्रग बेचनी है तो आपको ये रूल 122A फुलफिल करना पड़ता है। परमिशन टू मैन्युफैक्चरिंग न्यू ड्रग, ऐसा नहीं कि आप कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं चलता है। क्लिनिकल ट्रायल्स करना है तो आपको रूल 122DA करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दीज आर द सम रूल्स। ओके, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये जैसे सारा रूल दिया ना यहाँ पे, रूल 120A 120B, तो परमिशन लेना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करना है, फिर क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो ये सारे प्रोसेस है। अगर इसमें इतना हम फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगा और आपने सोचा और आपने स्टार्ट कर दिया। इन इंडिया इवन वी हैव सम रेगुलेशन, तो आपको हर एक चीज़ के लिए, परमिशन के लिए भी, आपको कुछ ड्रग इंपोर्ट भी करनी है तो भी परमिशन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो भी परमिशन चाहिए,
ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स करना है तो भी परमिशन चाहिए। तो जैसे कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक है, फिर हम ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस डिटेल्स में समझते हैं। तो तब तक आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, ओके, सो बी रेडी। आई विल आस्क टू एनीवन, how many peoples are there here? So यस किशन, सो टेल मी, और बाकी के लोग चैट में आंसर देंगे, ठीक है। आईएनडी कब करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? वी विल से द फुल फॉर्म ऑफ आईएनडी। आप चैट में भी लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। किशन भाई, आपसे सवाल ये है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ओके पायल। किशन भाई, वो कब जरूरत होता है आईएनडी का? इसका आंसर किशन भाई देंगे। फेज 1 में सर। फेज 1 में, ओके। तो बिफोर फेज 1, ओके, लेट मी या लेट मी शो दैट स्लाइड। बिफोर फेज 1 अगर ह्यूमन में करना है तो आपको आईएनडी लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। यस चलो ठीक है। अच्छा, खुशबू एनडीए कब करेंगे, एंड व्हाट इज द एनडीए फुल फॉर्म? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, एनडीए तब करेंगे जब किसी किसी न्यू ड्रग को ऐसे फेज 3 के बाद जब न्यू ड्रग, हाँ, न्यू हाँ ड्रग एप्लीकेशन फेज 3 के बाद जब हमें मार्केट में रखना है, जैसे कि अभी हमारी वैक्सीन है, ठीक है। तो हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन करेंगे, देन लेट मी शो दैट स्लाइड। उसके बाद हम जाएंगे मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बाद हम जाएंगे फेज 4 में। फेज 4 हम समझेंगे डिटेल्स में। चलो ठीक है, वो विल से टाइप ऑफ ड्रग्स। अंकिता, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं ड्रग्स के? टाइप ऑफ ड्रग्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड और सॉलिड, देन इंजेक्शन, यस, और ड्रॉप्स, और ऑइंटमेंट, टॉपिकल, और एक रह गया, मेडिकल डिवाइसेस। हाँ, और एक रह गया, नसल, ओके, इनहेलर, यस, राइट। सो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक इंटरनल और पैरेंटल, राइट। जो बॉडी के अंदर जाता है तो वो सारा इंटरनल है, जैसे कि ये सारा है ना, एंटरल। सो ये सारा हम ओरली लेते हैं ऐसे दवाई, फिर सबलिंगुअल लेते हैं इसे, फिर रेक्टल जैसे हम देते हैं ना, ये जैसे कि ये सबलिंगुअल, ये हम टंग के नीचे रखते हैं, ये सारा एंट्रल है। फिर पैरेंटल भी है, वेन में देते हैं, इंट्रामस्कुलर में देते हैं, सबक्यूटेनस स्किन के नीचे देते हैं, तो ये सारी पैरेंटल है। इनहेलेशन है, इंट्रानसल्स है, देन ये जैसे कि बोन में देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, है ना। चलो ठीक है, इंट्रामस्कुलर, परफेक्ट। टॉपिकल है ना। अच्छा, जो भी ट्रेजेडी हुई थी, ओके, वाई सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक टू रिकॉल, बिकॉज वी शुड नो एटलीस्ट वन ट्रेजेडी कि क्या हुआ था। कोई बता सकता है कि क्या मतलब? देर आर थ्री ट्रेजेडीज, देर आर थ्री इंसिडेंट्स हैपन विच ट्रिगर फॉर रेगुलेशन। सो कौन सी हुई थी? वन 1930 में, 1937 में,
1962 में, आप बता सकते हो यहाँ पे मैसेज में? यस, थैलिडोमाइन रेगुलेशंस, यस, देन जैकलैग, एनीबडी? धारा, प्रिया, क्या हुआ था? पैरालिसिस वाला, टेस्ट ऑफ डेथ, या परफेक्ट, टेस्ट ऑफ डेथ, वो अच्छा है ना टैगलाइन, मौत को टेस्ट करो। टेस्ट ऑफ डेथ, रास्पबेरी फ्लेवर में वो भी। फिर पैरालिसिस भी हो गया था एलेक्सिर वाला, यस, देख लेते एक बार, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैकलेग जिंजर जैक पॉइजनिंग, उसमें पॉइजन हो गया था सबको, और आर्म्स और लेग्स पे उसकी मसल्स वीकनेस आने लगी थी। देन ये जो था एलेक्सिर, नो, टेस्ट ऑफ रास्पबेरीज एंड टेस्ट ऑफ डेथ, बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे, 100 यूएस सिटीजन्स। एंड जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी में पैरालिसिस का इशू हो गया था, 5000 इन्फेंट्स, इन्फेंट्स बोले तो वेरी स्मॉल चाइल्ड, अभी जो अभी अभी जिसने जन्म लिया ना, वैसे लोग, यस। ओके, सो दैट इज ग्रेट। हाउ मच टाइम? ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ गुड। ओके, सो दिस इज़ गुड। अच्छा, इंडिया में कौन सी हमारी रेगुलेटरी एजेंसी है इंडिया में? वो विल से सिडिस्को, उसको, वो मतलब हाँ, उसका ओरिजिनल नेम है डीसीजीआई, जो अंडर सिडिस्को काम करती है। डीसीजीआई का फुल फॉर्म पता है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, राइट। आईसीएच का कौन बोलेगा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनी। यस, हार्मोनाइजेशंस बोले तो 3 लोग इकट्ठा होके उन्होंने ये बॉडी बनाई है, यूएसएफडीए, ईमा एंड एलएचएलडब्ल्यू, यस। Sir, I think the name of the ICH has been changed to International Council of Harmonization for या Harmonization. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ठीक है। No, International Council of Harmonization. अच्छा, काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, ओके। Yeah, the name has been changed. Yeah, name has been changed. Okay, previously it was known as conference. No issue. Thanks for updates. Right. Yeah, thanks for updates. Okay, so now our topic will be details, drug development process. Okay, so an overview of drug development process. We have less time, so we will join after 10 minutes with same link. जो मैंने आपको लिंक भेजी है वही लिंक में ज्वाइन करना है आफ्टर 10 मिनट्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में? एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस, लैब में होता है, फिर प्रीक्लिनिकल में, देन क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है। तो वो हम डिटेल्स में समझेंगे अभी। तो क्या होता है डिस्कवरी में, प्रीक्लिनिकल में, क्लिनिकल रिसर्च में, ठीक है। ये पूरा हम अभी सेकंड पार्ट में लेते हैं, कैसे कोई डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देन उसका लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड कंपाउंड, है ना, ये सारा है। चलो ये हम अभी करते हैं, और 10 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, फिर से हम ज्वाइन करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। तब तक आप यहीं पे रहिएगा, मैं मीटिंग सेव कर लेता हूँ, है ना, और फिर ज्वाइन होते हैं 10 मिनट्स के बाद सेम लिंक में, ठीक है एवरीबडी।